In first two sections of kinetic theory of gases, I have explained you about atomic theory, Boyle's law, Charles law, and concept of kinetic theory of gases. Now, I want to combine Boyle's law and Charles law. According to Boyle's law, what is Boyle's law? The volume of a gas is inversely proportional to the pressure of the gas, and according to Charles law, what is Charles law? The volume of a gas is directly proportional to the absolute temperature of the gas. So combining these two laws, volume directly proportional to T by P, PV by T is equals to constant. You can say P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2, and this equation is called equation of state. This equation is called equation of state. So if we take temperature is constant, so T2 to cancel, P1 V1 is equal to P2 V2. This is Boyle's law. If we take the pressure is constant, so P is same, P will be cancelled, V1 by T1 is equal to V2 by T2. This will be the Charles law. So this is called equation of state. Now we reach to Avogadro hypothesis. Avogadro साहब ने क्या कहा? According to Avogadro, अगर हम गैसेस ले रहे हैं और इक्वल वॉल्यूम ले लें, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल ले लिया और नाइट्रोजन भी इक्वल अमाउंट में ले लिया सब, तो ये बोला गया कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, यानी जितना वॉल्यूम ले रहे हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. ये कौन की थ्योरी की बात हो रही है? दिस इज द थ्योरी ऑफ, दिस इज द postulates of Avogadro. So according to Avogadro hypothesis, at constant temperature and the pressure, the equal volume of all gas obtained equal number of molecules. At constant temperature and pressure, equal volume of the gas contain equal number of molecules. यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस, हम बात कर रहे हैं आपसे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. The volume of the gas is directly proportional to the number of molecule of the gas. This is Avogadro hypothesis. Okay. So if we combine Boyle's law, Charles law and Avogadro hypothesis, अगर हम Boyle's law और Charles law और Avogadro hypothesis इनको कंबाइन करके चलें तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा. Boyle's law क्या कहता है? अभी आपके सामने मौजूद है कि V inversely proportional to the pressure, Charles law V directly proportional to temperature, and Avogadro hypothesis V directly proportional to the number of molecules. Now combining these three, V directly proportional to the NT by P. You can say PV directly proportional to NT, PV directly proportional to NT. Okay. You can say PV is equals to NT, and there is a some constant. What is this constant? R. R is a universal gas constant. So PV is equals to nRT, where N is the number of moles. N क्या है? Number of moles. R is a universal gas constant. R is called universal gas constant, and its value is 8.31 joule per mole Kelvin. Okay, so this is, you know well, what is this? This is the Avogadro equation. PV is equals to nRT, where T is the absolute temperature, N number of molecules. Okay. अगर हम ये बात करें कि साहब
इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, अगर हम 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए एक ग्राफ को प्लॉट करें, 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए ग्राफ को प्लॉट करें, तो हमारे पास ग्राफ आएगा PV = 1 RT, PV = 1 RT, यू कैन से PV/RT = 1। ज़रा गौर से देखें, PV/RT = 1। अब बात करें कि PV/RT यानी हर गैस के लिए PV/RT का जो रेशो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट होने के लिए अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं प्रेशर एंड PV/RT, प्रेशर चेंज करते जा रहे हैं, PV/RT नोट करते जा रहे हैं, तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन दैट विल बी ए कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस। सो ये क्लियर हो चुका है कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ओके, तो ग्राफ PV/RT इज कांस्टेंट फॉर ऑल द गैस, राइट, ओके। तो अगर हम ये ले लें कि अलग अलग टेम्परेचर ले लें, प्रेशर ले लें, वॉल्यूम ले लें, तो ग्राफ से ये बात क्लियर हो गई है कि अब ये कि जितना भी ये बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, सभी के सभी लॉज आपके फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं एट हायर टेम्परेचर। इट इज़ क्लियर। नाउ आई वांट टू स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज़ द नेक्स्ट? हाँ, एक चीज़ और, अगर हम बात करें बिहेवियर की बात करें, इसी ग्राफ में हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर को लेके बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर हम 3 अलग अलग टेम्परेचर ले लेते हैं, T1, T2 एंड T3, और हम देखते हैं कि इन तीनों टेम्परेचर पे क्या वेरिएशन आ रहा है। तो आप ज़रा देखिएगा, ग्राफ की बात करें तो हम T1, T2 एंड T3 3 टेम्परेचर्स लेते हैं। एक में ग्राफ आप देखें, यूँ करके ग्राफ गया। मान लीजिए एक टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे गया, दूसरे टेम्परेचर का ग्राफ यहीं से शुरू करेंगे और हमारा ग्राफ ऐसे गया, और तीसरे टेम्परेचर का ग्राफ ये गया। ये 3 अलग अलग टेम्परेचर लिए गए हैं, जिसमें से एक T1 है, एक T2 है एंड थर्ड वन इज़ T3। और टेम्परेचर की बात करें तो T1 > T2 > T3। तो आप एक ख़ास बात देखिएगा, ये परफेक्शन दिखा रहा है कि PV/RT = कांस्टेंट, और ये डिफरेंट टेम्परेचर्स की बात हो रही है। तो आई वांट टू आस्क यू कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पे कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ लगभग मैच कर रहा है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि T1 टेम्परेचर पर नियर बाई रीडिंग आ रही है, और T2 पे और ज़्यादा दूर चली जा रही है, रीडिंग वेरी कर जा रही है, T3 पे और ज़्यादा वेरी कर जा रहा है। तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि तीनों चीज़ें, ये ग्राफ जो हैं लो प्रेशर पे ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रहे हैं, हाई प्रेशर पे सेपरेट हो जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, लो पे ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हाई टेम्परेचर एंड लो क्या प्रेशर, लो प्रेशर, ये दिस इज अ कंडीशन कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ये सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं हाई टेम्परेचर बट फॉर low pressure. It is clear to all of you? Okay, now my the next topic, okay, work done in compression of a gas. My next topic is the work done in compression of a gas. तो बात करेंगे work done in compression of a gas. एक छोटी सी चीज़ अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इन द थर्मोडायनामिक्स या इन द हीट जो भी आप बात करें, जो वर्क का फॉर्मूला होता है -P external into delta V. What is -P external? This is the external pressure and delta V is the change in volume. P external plus F external pressure. What is P external? Means external pressure applied on the system, and delta V is equals to change in volume. अब बात करेंगे डेल्टा V को लेके। यहाँ पे 2 केस आ जाते हैं, देयर आर 2 केसेस, वन इज एक्सपेंशन एंड सेकंड वन इज द कंप्रेशन। और डेल्टा V आप जानते हैं, डेल्टा V का मतलब होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब एक्सपेंशन मीन्स V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल एंड कंप्रेशन मीन्स V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल। So I want to ask you work done in expansion. Work done in expansion की बात करें तो -P external and this is V final minus V initial
Okay, so work will be negative because V final is greater than V initial एंड W कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन में वर्क की बात करें तो आप देखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल, हियर V फाइनल माइनस V इनिशियल। बट यहाँ पे क्या है, पहले केस में क्या था कि फाइनल ज़्यादा था इनिशियल से, तो ये टर्म पॉजिटिव आया, देन ओवरऑल नेगेटिव आ गया। बट यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन में इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होता है, फाइनल वॉल्यूम कम होता है, सॉरी दिस उल्टा, इनिशियल ज़्यादा फाइनल कम, तो ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव। तो ये क्लियर हो चुका है कि डेल्टा वी। सो यू कैन से कि वर्क डन इन कंप्रेशन पॉजिटिव होता है एंड वर्क डन इन एक्सपेंशन नेगेटिव। तो दिमाग में पूरी तरह से आप लोग सेट कर लीजिए कि कंप्रेशन में जो वर्क है वो पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन का जो वर्क है वो पॉजिटिव होता है और एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव होता है। अब बात करेंगे, अगर कोई ये पूछे आपसे अचानक कि जी साहब वर्क का फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे ही आपने ये फॉर्मूला बना लिया, क्या किया, तो ये जनरली एक रफली अपने मन में सेट कर लीजिए कि भाई वर्क के लिए करेंगे क्या, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है, आप जानते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन एरिया या चेंज इन जो भी कुछ है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा डी से दिखाया हमने मान लीजिए। तो दिस इज फोर्स इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, सो सॉरी, ये दिस इज अ प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सो वर्क का फॉर्मूला ये हो गया। अब किसी ने कहा साहब माइनस साइन क्यों आता है, तो इसके लिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जो भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्सेस है इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए माइनस साइन आ जाता है। ये एक जनरली हो गया। तो वर्क का फॉर्मूला हमेशा के लिए हम याद कर लेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया वर्क का। अगर फॉर्मूले की बात करें तो माइनस पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।